करेंगे. That is why it is very much important question. Okay, so let's move to the question. And okay, let's go to the question. This is your question. Go through the question quickly. Go through the question quickly. मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ. Is it visible to all? Okay, go through the question. Is there any doubt in this question? Any point adjustment like stock increased to 2,20,000 or provision for doubtful debt is to be reduced by 2,000 rupees, like that? Is there any doubt in this question? Okay, not getting any response from you all, so I will start my solution part. But before that, let's read that last line. Pass an adjustment entry giving the effect to the above arrangement and prepare balance sheet after the adjustment. As soon as you see this type of line, it makes sense that कि आपके पास जो एसेट्स की जो बुक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, एट द सेम बुक वैल्यू दिस ऑल विल बी रिकॉर्डेड. ठीक है, एंड ये जो टोटल है वो टोटल भी चेंज नहीं होगा. दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम वैल्यू. सब कुछ सेम वैल्यू में रिकॉर्ड होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. सिर्फ समझ लेना, सिर्फ चेंज होगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल. क्या चेंज होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो चेंज होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस. क्या चेंज होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस. अब वो भी बैलेंसेस आपको ध्यान रखना है, दैट बैलेंस विल आल्सो चेंज इंटरनली. द टोटल विल आल्सो नॉट चेंज. Total will also not change if we have to pass an adjustment entry. In this case, we don't need to prepare revaluation account. Okay, we don't need to do much calculation. There is some calculation, but not that very much calculation. So we have to be careful about these lines. ये हमारे पास ऐसे questions आ जाते हैं तो हमें कैसे करना है. ठीक. Secondly, the same question we will be doing, like preparing revaluation account, preparing partners capital account, and preparing balance sheet. Okay, so let's move to the solution part. And here we go for our solution. ये रहा हमारा सॉल्यूशन पार्ट. देखो, सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहला, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ, हमारे पास जो केस दिया हुआ, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री. For that adjustment entry, we have to find out net revaluation effect. Net revaluation effect.
तो नेट रिवैल्यूएशन फाइंड आउट, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का इफेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ था, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 20,000 रुपीज। अभी स्टॉक है कितना हमारे पास, 2 लाख रुपीज का। सो देयर इज गेन और लॉस, गेन, so I have written like this, gain on stock 20,000 rupees. Okay, next is provision for doubtful debt to be reduced by 2,000 rupees, reduced by, it is 2,20,000, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। It is by 2,000, that means there will be impact of 2,000 only, that they are saying that provision for doubtful debt reduced from 10,000 to 8,000, then only we can be able to find out this 2,000 rupees. So we have to be careful about all these things, by and to. It can be confusing at a time, but if you have the clear understanding कि by और to में क्या difference है, so हम easily इसे overcome कर सकते हैं, ठीक है। So next move to this thing, and यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अगर हमारा प्रोविजन कम हो गया, दैट मीन्स कि हमारे जो लॉस होने के जो चांसेस थे वो भी हमारे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर हमारे लॉस होने के चांसेस अगर कम हो गए हैं तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट है। सो दैट चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने यहाँ पे 2,000 रुपीज लिख लिया है। In the same manner, we have been given with furniture to be reduced by 20%. फर्नीचर पे 20%, देखो 50,000 का फर्नीचर, इसके ऊपर 20% को रिड्यूस करेंगे तो 20% मतलब 10,000, तो देखो 10,000 का लॉस हो गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्रीज इन फर्नीचर 10,000 रुपीज, 20%। यू कैन राइट इट हियर एज 20% फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, द नेक्स्ट इज वी हैव बीन गिवन विद कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2,70,000। अब देखो हमारे पास है कितना, 3,70,000 है, उसको कितने पे रिकॉर्ड करना था, कितना हो गया हमारे पास 2,70,000, दैट मींस कितने का लॉस होगा हमारे पास, 30,000 का लॉस है। तो डिक्रीज इन कंप्यूटर हमने यहाँ पे लिख लिया 30,000। अगेन नाउ द टोटल कम्स टू -18,000 रुपीज, -18,000। याद रख लेना, पहले रिवैल्यूएशन एसेट्स का देख लेना कि किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है, वो लिख लेंगे हम। इंक्रीज जिसका भी होगा, अगर हमारे प्रॉफिट होगा तो हम उसे प्लस करेंगे, अगर हमें कुछ भी लॉस होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। This will be termed as your loss on revaluation. If it is positive value तो हम इसे क्या बोलेंगे, profit on revaluation। तो हमने इसे क्या किया, loss on revaluation फाइंड आउट किया, हमारे पास आ गया 18,000। After that, in this only we will adjust for accumulated profits and reserves, accumulated profits and reserve। So we have been given with profit and loss account credit balance 30,000 and reserve हमारे पास दिया हुआ 80,000। यही है, क्या हमारे पास कोई लॉस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और समथिंग लाइक दैट, कुछ हमारे पास ऐसा दिया हुआ नहीं, दिया हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड गुडविल जो था हमारे पास, जो रिजर्व जो दिया हुआ था मेरे पास 80,000 रुपीज का, मैंने वो भी लिख दिया। अब ये आता है हमारे पास ये गुडविल। अगर ओल्ड गुडविल होता तो हम क्या करते, ओल्ड गुडविल को हम माइनस करते और न्यू गुडविल को हम ऐड करते। लिख लेना इसे कहीं पे, साथ साथ लिखते रहो। ओल्ड गुडविल अगर होता और अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता तो हम उसे क्या करते, माइनस करते, एंड न्यू गुडविल को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो जब हमने इसका टोटलिंग किया, दिस विल बी नोन एज योर नेट इफेक्ट, दिस विल बी नोन एज योर नेट इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, ये नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने 1,92,000 रुपीज यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता और क्लेम ज्यादा होता, तो क्लेम अगर ज्यादा होता तो हमारे लिए लॉस होता, एंड दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम वही करते हैं, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया 1,92,000 रुपीज का। दैट मींस अब जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो 1,92,000 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला केस तो हमारे पास ये होता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है टू फाइंड आउट द एडजस्टमेंट और द नेट इफेक्ट वैल्यू और द एडजस्टेड वैल्यू। हमने निकाल लिया 1,92,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज योर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने ए, टी एंड ए, अमित 3 पार्टनर थे, इसका नाम देखो क्या नाम है, अमर, तरुण एंड अखिल। अमर, तरुण एंड अखिल का हमारे पास जो आएगा वो है क्या, ये मैंने निकाल लिया। अमर, तरुण एंड अखिल का मैंने ये फाइंड आउट किया। न्यू ओल्ड माइनस न्यू मैंने ये निकाला,
और देखो निकालने के बाद मेरे पास जो रेशियो आया वो आ गया 5/10 सैक्रिफाइसिंग, दैट मींस अमर इज सैक्रिफाइसिंग 5/10 5/50 इन फेवर ऑफ तरुण, इन फेवर ऑफ तरुण। तो तरुण क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 5/50। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ए शेयर निकाल लिया 5/15, ए का शेयर निकाल लिया, कितना आ गया मेरे पास, ए का शेयर मैंने यहाँ पे निकाला, देखो कितना आया 5/50 आया, कितना आया 5/50, 5/50 इंटू 1,92,000, तो 19,200 आ गया, 19,200। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग पहला पास करेंगे बिल्कुल फॉर्मेट बना के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 19,200 फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस 19,200 विल बी debited from Tarun's capital account. That 19,200 will be debited from Tarun's capital account and will be credited to Amar's capital account. 19,200, that is your adjustment. Nothing else we will do. Okay, यही काम हमें करना है, इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री में कोई भी आपको डाउट होगा तो सेम वीडियो जो मैं आपको समझा रहा हूं, सेम वीडियो विल बी अपलोडेड टू द यूट्यूब, ठीक है। सो आपकी उसे देख सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट हो सकते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं करवाए गए हैं और यूट्यूब पे उसे अपलोड कर दिया गया है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और इसका हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये देखो बैलेंस शीट के साथ मुझे लिखना जरूरी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और आप लोग थोड़ा सा इसके साथ जो है वो फॉर्मेट बना लेना कि हमारे पास दिस साइड विल बी नोन एज योर लायबिलिटी साइड, दिस साइड this is your amount, this is your assets, and this is your amount. So I have written cash in hand, bank balance, everything at the same value, nothing has changed. आप इसको अगर देखो मैच करो तो सब कुछ सेम है, देखो इसके साथ आप इसे मैच करो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 25,000, 1, 25, 10,000, 90,000, 2 लाख, 50,000, 3 lakhs and 1 lakh total is 9 lakh। देखो जरा यहाँ मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, everything is recorded at the same place because we have to pass adjustment entry। और adjustment entry का क्या मतलब होता है, that no value will be recorded, no new value will be recorded, all the old value will be recorded in the books of account। So in that case we will be recording all the old values only, all the old values only। Okay, so now going to that liability side, creditor में भी मैंने यही amount लिखा, salaries outstanding same amount, even reserves are also written as 80,000, profit and loss account are also written as। now we have to be careful in writing all these things, because the thing is we have not written off any of these things, these are credit in nature and we have not debited it anywhere। हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया, अगर हम इसको डेबिट कर देते तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने इसे डेबिट तो किया नहीं है, डेबिट नहीं किया, दैट मींस ये अभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखा है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, कैपिटल अकाउंट लिखा है। अब कैपिटल अकाउंट में अमर के बारे में लिखा है, अमर का पहले कितना कैपिटल था चेक करो, 3 लाख रुपए, और हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है कि अमर को कितना पैसा मिलेगा, 19,200 रुपए अमर को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अमर के कैपिटल अकाउंट में 19,200 रुपए ऐड, दैट कम्स टू 3,19,200। और ये अमर को जो 19,200 मिला वो कहां से मिला है, आप इसे प्लस का साइन यहाँ पे शो करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पे तरुण के कैपिटल अकाउंट से ले लिया, किससे ले लिया, तरुण के कैपिटल अकाउंट से ले लिया, कितना लिया 19,200 लिया। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,60,000 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आना चाहिए था वैल्यू 1,60,000, ये वैल्यू जो है ना वो चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 1,60,800 वैल्यू है, ठीक है, 1,60,800 यहाँ पे हम वैल्यू शो करें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, 1,60,800 हमारे पास वैल्यू आएगा, और अखिल के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो अखिल की वैल्यू जो है वो सेम आएगी 1,20,000, ठीक, क्योंकि अखिल के साथ तो हमने कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे किया नहीं, अखिल तो कहीं पे इन्वॉल्व भी है ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाई कर रहा है। तो जब आप इसकी टोटलिंग करेंगे 3,19,200 प्लस 1,60,800 प्लस 1,20,000, तो आपके पास जो कैपिटल है वो भी 6 लाख ही आएगा, वो 6 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं आएगा और 1 रुपया भी ज्यादा
नहीं आएगा, एंड द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल बी योर 9 लाख रुपीज ऑन। तो इन दिस वे वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, याद रखना, यहाँ पे 1,60,800 है, दिस इज योर कैलकुलेशन मिस्टेक। ये मैंने अभी अभी जस्ट नोटिस किया है कि कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है, 1,60,800, इसको ध्यान से देख लेना, इसको सेम कॉपी मत करना, और याद रखना। ओके, टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? वेरी गुड, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज योर सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बट इस क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन था वो क्या था? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था। चेंज द लास्ट लाइन टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जब मैंने ये बोल दिया आपको कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर दैट क्या बोलते हैं इसे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो हम दैट मीन्स कि और हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, तो दिस वे वी विल अज्यूम लाइक कि हमें जो है वो न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। हमें क्या करना है? न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। एनीवेयर इफ यू हैव बीन सेड लाइक दैट कि रिजर्व एंड प्रॉफिट की वैल्यू हमें बुक वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब ओल्ड वैल्यू ही हमें रिकॉर्ड करनी है, दैट मीन्स फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। जब भी हमसे ऐसा बोला जाए, अगर हमें बोला जाए कि हमें एसेट्स के सेम वैल्यूज को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, बट हमें रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ कर देना है, तो हम रिजर्व और प्रॉफिट को राइट ऑफ कर देंगे, एसेट्स के वैल्यू में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग के अकॉर्डिंग हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कुछ है। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पास एंड एडजस्टमेंट एंड पास सॉरी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, द सेम थिंग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब मैंने स्टॉक जो था वो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, सो आई हैव रिटन बाय स्टॉक्स 20,000 रुपीज, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो था वो आपका डिक्रीज हो रहा था 2,000 रुपीज से, सो आई हैव रिटन 2,000 रुपीज, बिकॉज ये जो 2,000 रुपीज है वो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट हमें ये भी बोला गया था कि फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 20% से कम हो रहा है, तो 50,000 वैल्यू था, एंड दैट रिड्यूसेस बाय 20%, तो 50,000 का 20% if you will calculate it will come to 10,000 rupees, so that 10,000 that fall in the value of asset is our loss, so that is why I have debited it to the revaluation account. And then the next is computers were also valued at 2,70,000 where the book value was 3 lakh rupees. In that case also 30,000 rupees का हमें loss हो रहा था, so that is why 30,000 rupees has been transferred to this place. Now the thing is डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अगर आप डेबिट साइड में देखो तो कितना आपके पास 40,000 है, क्रेडिट साइड में कितना है? 22,000 है। दैट मींस लॉस आर मोर देन द प्रॉफिट्स। इन दैट केस द नेट इफेक्ट इज लॉस। लॉस हमारे पास कितना आ गया? देखो हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया और हमारे पास क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया। जब आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कुछ भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? आपके पास क्रेडिट साइड में आएगा। एट द सेम टाइम जो डेबिट साइड में आएगा वो क्या होगा? आपके पास प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे पास आया बैलेंसिंग फिगर 18,000 रुपीज, इस 18,000 को मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 9,000, 5,400 एंड 3,600, मैंने ये लिख दिया यहाँ। मैंने इसको डिवाइड किया तो 9,000 इट कम्स टू 9,000, 5,400 एंड 3,600। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा देख लो। प्रॉफिट हमें हुआ स्टॉक पे 20,000 रुपीज का, तो हमने यहाँ पे लिखा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था हमारे पास 2,000 रुपीज का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका डिक्रीज हो रहा था। ऑन डेबिट साइड फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपए से रिड्यूस हो रही थी, दैट इज 20% ऑफ 50,000 रुपीज, एंड कंप्यूटर्स की वैल्यू 3 लाख से रिड्यूस होके 2,70,000 हो गया था, तो 30,000 का हमें यहाँ पे भी लॉस हो रहा था। हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया, 18,000 आया, एंड दैट 18,000 वाज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 9000, 5400 एंड 3600 इट कम्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने तीनों पार्टनर का नाम लिखा, अमर, तरुण और अखिल का मैंने नाम लिखा। और सबसे पहला काम किया कि मैंने बैलेंसिंग फिगर जो था, सॉरी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, जो दैट इज जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद और क्या करना है, जो रिजर्व का जो भी प्रॉफिट था, रिजर्व एंड सरप्लस का जो प्रॉफिट था ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। यहाँ पे देखो ये जो भी हमारे पास था ना, ये लॉस, ये क्या हमारे पास लॉस है। ओके, ये जो लॉस है, इस लॉस को देखो ध्यान से, 9,5400 और 3600। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसे कहीं और देते, तो ये लॉस था, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000, 5400 एंड 3600 ये मैंने लिख दिया। फिर आपके पास रिजर्व था 80,000 रुपीज का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था 30,000 रुपीज का। तो देखो मैंने यहाँ पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिजर्व को अभी हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है। और ऐसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस था, इसको भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। ये दोनों काम हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अब हमें एक ट्रीटमेंट करना है, जो ट्रीटमेंट है गुडविल। ये याद रखना है, ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा कि आपको गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करना है, बट आपको ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है, बिकॉज वन पार्टनर इज गेनिंग और मोर देन वन पार्टनर इज गेनिंग एंड अदर पार्टनर्स आर sacrificing, so we have to compensate the sacrificing partner from gaining partner. So in that order I have calculated some calculation like this. कहाँ गया मेरा वो calculation part, it is straight first, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम इसे देख लेते हैं और हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखो कि हमें क्या करना है, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस। चलो देखते हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पहले से ही पता है कि क्या होता क्या है, ठीक है। और अगर हम और अगर हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ही हमने फाइंड आउट कर लिया था, यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास क्या कुछ आ रहा था, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने गेनिंग हमारे पास ये है 5/10, तरुण गेन कर रहा है एंड अमर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 5, यही कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं, इसी को हम दूसरा यूज करके हम दूसरा पार्ट एक बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ चीजें आ जाएंगी। और गुडविल की वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमने देखा था क्या, गुडविल की वैल्यू कितनी है हमारी। चलो एक बार चेक करते हैं कि गुडविल की वैल्यू कितनी है हमारी। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो भी हमारे पास 1 लाख रुपए का हमने रिवैल्यू किया हुआ है। तो अगर हम गुडविल के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इट इज नॉट योर रिप्लाई, इट इज ओके। चलो तो हम देखते हैं जरा हमारे पास क्या होगा। तो अमर का जो है, अमर, सही, व्हाट इज हिज नेम, अमर, अमर का शेयर कितना है, 5/10 and this 5/10 will be multiplied by sorry, not, it is not 5/10, it is 5/50, sorry, it's 5/50 and it will be multiplied by 1 lakh rupees। कितने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल से। तो जो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल कम्स टू 10,000 रुपीज। कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 रुपीज। और अमर का जो सेक्रीफाइसिंग है वो कौन करेगा, अमर का सेक्रीफाइसिंग पे करेगा, अमर का सेक्रीफाइसिंग पे करेगा तरुण, बिकॉज तरुण इज गेनिंग। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अमर के कैपिटल अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमर के कैपिटल अकाउंट में हमने 10,000 रुपीज दे दिया है बाय तरुण कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपीज आ गया एंड सेम 10,000 रुपीज हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम तरुण कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इसके अलावा हमारे पास कुछ और नहीं रह जाता है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स हमने क्या किया, अमर, तरुण और अखिल का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया।
3 lakh plus 15,000 plus 40,000 plus 10,000 that comes to 3,65,000. बट यहाँ पे डेबिट साइड में 9,000 रुपीज का लॉस दिया हुआ है आपके पास, तो आपने इसको माइनस किया एंड द बैलेंसिंग फिगर फॉर अमर कम्स टू रुपीज 3,56,000. In the same manner for Tarun it comes to 19,700 1,97,600 and for Akhil also it comes to rupees 1,38,400 like that. Now we will move to the balance sheet and the reconstitution of the balance sheet is being given here, reconstituted balance sheet, because nothing has been cash, हमारे पास कुछ आया नहीं है, कुछ गया नहीं है, बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन हुए नहीं है, बिल रिसीवेबल से रिलेटेड हमारे पास कोई एंट्री है नहीं, so all the book values are to be recorded. ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास सन्ड्री डेटर्स 1 लाख रुपीस गिवन था, इससे भी रिलेटेड हमारे पास कुछ और चीजें गिवन थी. क्या गिवन थी हमारे पास कि 2,000 रुपीज का, पहले हमारा जो प्रोविजन था वो कितने का था, 10,000 रुपीज का था, अब वो प्रोविजन 2,000 रुपए से कम हो गया, तो नाउ द प्रोविजन इज ऑफ 8,000 रुपीज. तो हमने 8,000 रुपीज यहाँ पे माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास, 92,000 रुपीज आ गया. स्टॉक बोला गया था हमें कि इट इंक्रीज टू 2,20,000, तो देखो हमने स्टॉक की एक न्यू वैल्यू एंटर किया यहाँ पे. देन फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर था आपके पास पहले से, 20% चला गया, दैट मीन्स 10,000 रुपीज आपने उसमें से डिडक्ट किया था, लॉस हो गया था आपके पास, तो आपके पास फर्नीचर की न्यू वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपीज. कंप्यूटर भी बोला गया था कि दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2,70,000, तो 30,000 का लॉस था, तो 3 लाख में से हमने 30,000 माइनस किया, तो इट कम्स टू 2,70,000. तो ये सब चीजें हमारे पास आ गया है. और देखो आप कि हमने सिर्फ उन्हीं चीजों के वैल्यूज में चेंज किया जिससे रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री गिवन था. ऐसी चीजें जिसके साथ हमारे पास कोई एडजस्टमेंट एंट्री गिवन नहीं था, हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, देन बिल रिसीवेबल हो गया, एयर कंडीशन हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया है. देन कमिंग टू द लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था. सैलरीज आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हमारे पास कोई चीजें गिवन नहीं है, सो वी हैव रिटर्न 30,000 एज इट इज फ्रॉम दैट प्रीवियस बैलेंस शीट. बट नाउ द कैपिटल अकाउंट में देखो ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना हमारे पास 3,56,000, 1,97,600, 1,38,400, तो मैंने ये वाले वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं. जब आप इन वैल्यूज को जैसे ही आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो टोटलिंग है, वो दोनों साइड का जो टोटलिंग है वो 1,82,000 रुपीज आ रहा है. कितना आ रहा है, 1,82,000 रुपीज आ रहा है. 1,82,000 ही आएगा, एक बार चेक कर लेना, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं. ठीक है क्या, क्योंकि अगर 1 लाख या 8,82,000 अगर आप लोगों की हुई तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड की आप लोग टोटलिंग कर लेंगे और ये आपका मैच होना चाहिए. रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, 11th का कंसेप्ट था कि भैया अगर बैलेंस शीट मैच हो गया तो आपका सॉल्यूशन आ गया, सही आ गया. 12th में एक चीज ध्यान रख लो, अगर आपने बैलेंस शीट मैच भी कर दिया, देन ऑल्सो देयर इज ए चांस कि आप मिस्टेक कर सकते. आपने ट्रायल बैलेंस करते हुए एरर ऑफ ओमिशन का नाम सुना होगा. अगर आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया होगा तो आप लोगों ने सुना होगा एरर ऑफ ओमिशन. अगर हम किसी भी आइटम को ओमिट कर देते हैं ना, दैट सिंपली मीन्स कि उसका कोई बैलेंस शीट पे इंपैक्ट नहीं होगा और आपका ऐसे ही मैच हो जाएगा बैलेंस शीट. लेकिन गलती तो हम कर रहे हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन प्रिपेयरिंग एंड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे, आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा. गुप्ता जी जरा बुक खोलो और देखो जरा कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, और जरा बताओ मुझे.